Hello, everyone. Very good evening and many congratulations to all of you. Yes, so I think it's a big day yesterday, and I believe that you people are enjoying this time big time. Yes, so I hope everyone is able to hear me out. Yes, Nikhil, I can see you as well. Yes, sir, enjoying the moment. Right. Fantastic, fantastic. So yes, you have become overnight celebrities now. Wherever you are going, right? People are just congratulating you all, and then definitely it's a fantastic time. So the party has just started. Yes, I believe that ये तो भी continue रखना है आप लोगों को. What we have, but definitely it is also parallelly important to focus on what next. Yes, so Because- आज का जो session है, right? That session is all about what are the parallel things that you need to do. Yes, so some of you have already know me. Yes, आप में से काफी लोग से मैं शायद ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिला हूँ, राइट? तो आप बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, राइट? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. So basically, my name is Gunjan Shrimal, and I am by profession chartered accountant. I invested almost 10 years of after my qualification in the industry. ये जो logos आप देख रहे हो नीचे, in particular companies I have worked for. Right, I started my career with Idea Cellular. जैसे कि अभी आप लोग कैंपस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही I have also started preparation for my campus, and that was my first job, right? जो अभी वोडाफोन आइडिया हो गया है. So Idea was my first job. Second, I opted for a startup. That startup was Tikona Digital Networks. You might have heard of it. It's a broadband company. I worked over there for 4 years, and after that, I moved to Malaysia. Malaysia, I joined a company called as Exiata, and Exiata is a company that is again into telecom. It is one of the largest conglomerate all across Asia. They have presence in almost 6 countries. I was handling the mergers and acquisition over there. And then I have joined Apollo Group of Hospitals. You have heard of Apollo Group of Hospitals. That is into healthcare, and I joined one of their subsidiary as a CFO. Right. So why I'm talking about all these credentials and all this journey, because this is something very important, because you people are now starting a completely different journey. एक जर्नी अभी आप लोगों की कंप्लीट हुई है, और अब इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अनदर वन. And I personally believe that this journey has to start in a perfect manner, in the most logical manner and most structured manner. So whatever mistakes I have done, I have seen, that I'm just trying to share with all of you. So this session is all about mistakes and the right things, and not only about me. First 10 years, definitely I spent in all these companies at different positions. And next 5 years, I'm training the students when we started Camp Prep. Camp Prep is basically about campus preparations. So when I started, definitely a lot of students, they were struggling with their first job, and we tried helping them their first job, and that's what we are doing. So we have seen multiple set of students, those who are cleared in the first attempt, those who are cleared in multiple attempts, those who are rank holders, then those who are having difficulties in communication part, those who are having expectations of getting into finance, those who have medium articleship experience, those who have fantastic articleship experience. So what we have seen is multiple set of students, and of course, when we do train students, there are a lot of mistakes which they have made, and there are a lot of good steps that they have taken. Right. So it's today's session is all about that. Apart from talking about the ICI campus placement program, yes, ICI every attempt they conduct a placement program for all of you. So specifically, we'll be talking about that. Yes. So I just want that all of you should be interactive, right? Just be a moment पे आपको लगता है कि like it is we are getting too much into technicalities. If you're not able to understand any particular point, or if you are having any doubt, yes, but definitely feel free.
to ask any questions. Yes. Also, it would be better if you can note down some of the important points during this entire session. I'll be highlighting few things which are very, very, very important. Yes. So, although entire session is important for all of you, but still there are few things which are very important, right? And you need to be very, very conscious about it. Since the any mistake, right, will take out few years of your career, right? We should avoid making those mistakes. And अगर आप वो mistakes avoid करते हो तो definitely कुछ साल और कुछ लाख पैसे आपके जरूर बचेंगे। इस बात की मैं आपको 100% एश्योरेंस दे सकता हूँ। ठीक है, तो so once again, I think this is very important, right? Again, congratulations to everyone, those who have conquered this difficult journey. And I believe that you keep on uh, winning the next phases of your life. This is definitely a fantastic time. और अभी हम लोग आज का जो सेशन है इसके तीन पार्ट्स हैं, राइट? सो फर्स्ट पार्ट विल बी कवरिंग अप टुडे, सेकंड टुमारो एंड देन डे आफ्टर। सो इस तरह से तीन पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। All right, so the theme for the session is that be realistic. Be very much realistic and as well as optimistic. आप सब लोग optimistic तो obviously हो, right? इसलिए आज आप यहाँ पर हैं, right? लेकिन be realistic also, okay? So ये जो बहुत सारी बातें होती है मार्केट में, ऐसा बोलते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, तो वो बातें जो है वो आज हमको क्लैरिफाई करनी है, कौन ऐसा कहता है कि ये होगा या नहीं होगा। यस, तो बी रियलिस्टिक, राइट? जितनी भी बातें यहाँ पे करनी है सारी बातें आपको फैक्चुअल बेसिस पे करनी है। ठीक है, तो मैं आज इसको थीम बनाकर चल रहा हूँ और इसी के ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो आप लोगों के लिए अगेन वर्ड आफ्टर, राइट? जैसा बोलते हैं कि लाइक लाइफ विल बी वेरी इजी वंस यू क्लियर योर सीए फाउंडेशन, राइट? पेरेंट्स ने बोला होगा कि एक बार बस 12th क्लियर, स्कूल से निकल जाओ एक बार, दिस लाइफ विल बी वेरी इजी। एक बार 12th क्लियर हो जाए, बोर्ड क्लियर हो जाए, सेम थिंग हैपेंस आफ्टर फाउंडेशन। यस, लाइफ विल बी वेरी इजी, राइट निखिल? आपको बोला होगा यस, लाइफ विल बी वेरी इजी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यस, तो Chasing the dreams. एवरी टाइम इट हैपेंस। यस, और उसके बाद जैसे ही आपने इंटर क्लियर किया होगा तब तो यही बोला होगा कि अब तो बस फाइनल बचा है। Bus यस, time. लाइफ विल बी सुपर इजी एंड देन नाउ फाइनल्स, राइट? तो अब तो लोगों ने 100% आपको ये बोला होगा कि अब तो आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ गए हो। सो डेफिनेटली इट हैपेंस, लाइफ डेफिनेटली आई बिलीव कंपैरेटिवली इट वुड बी वेरी इजी। जब मैंने भी सीए क्लियर किया था तो लाइफ बिकम्स इजी, ये तो एक फैक्ट है, राइट? लेकिन देयर आर न्यू चैलेंजेस एंड दोस चैलेंजेस आर देयर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. So there are many questions, right? These questions, if you can divide it, there are three parts to that. First part is about the career guidance, right? Careers related questions. Which companies, whether campus, off campus, which profiles, ये सब career से related questions. दूसरे questions आते हैं related to preparations, right? Group discussions, interview preparations. That's another one. And third is self clarity, right? कई कई बार हम खुद confuse होते हैं कि हमको किस पर्टिकुलर रोल में जाना है। कई लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिस में जाना है या जॉब में जाना है। ये ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। और एक जो चीज़ मैं बार-बार सुनता हूँ, राइट? हर फोरम में जाता हूँ और हर जगह जहाँ पे भी बात करता हूँ कि लाइफ में आगे करना क्या है? तो एक बड़ा अच्छा-सा आंसर आता है और वो आता है कि 2 साल जॉब करनी है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। यस, ये सबसे मज़ेदार आंसर है। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि ये आंसर सबसे कॉमन आंसर होता है। यस, तो ये सब बातें जो है, इन सब बातों को सोचने का अब टाइम आ गया है बिकॉज़ 15th जैन से आपके कैंपस के फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएँगे और नेक्स्ट मंथ 20th फरवरी से आप लोगों की के इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएँगे, राइट? तो अब टाइम है कि बेसिकली वी विल बी specifically talking about all these things, right? So this has a lot of questions. आज ही मुझे एक और फोन भी आया था, right? Somebody was asking about taxation, right? Are there any openings in taxation? तो
आज का जो सेशन है ये सारी ही चीजों को कवर कर लेगा। Right, so we have divided all this into three parts. First is understanding the opportunities and industry, इसमें ICI campus भी cover हो जाएगा. Second is self clarity and third is campus preparations. ठीक है, तीन पार्ट में पूरा सेशन डिवाइडेड रहेगा. आज एक पार्ट रहेगा, tomorrow next and then third one the day after tomorrow. तो इसमें हम लोग मेनली आज कवर करेंगे ICI कैंपस के बारे में. Or there are a lot of things that we need to be clear of, right? बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आपको मिलेंगे जो हम लोगों को हम सुनते हैं बेसिकली और उसको मान भी लेते हैं कि राइट ऐसा ही होता है. इस तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं कि जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, राइट, उनको कैंपस में दिक्कत आती है. ठीक है, उनका कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता. कई लोग तो ये तक बोल देते हैं कि 3 अटेम्प्ट के बाद अ, अगर आप सीए बने हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, राइट. तो ये सब बातें जो होती है, राइट, उनको पहले कुछ क्लैरिफाई कर लेते हो. देयर आर सम मिसकंसेप्शंस एंड देयर आर सम रियल स्टोरीज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. तो उससे एक पर्सपेक्टिव, एक आज का कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा और आपके भी माइंड में जितने क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस को फिर आप कैटेगरिकली पूछते जाइएगा, राइट. तो सबसे पहली बात तो ये है कि अटेम्प्ट्स एंड स्पेसिफिकेशन. यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ आवर स्टूडेंट. ही he cleared in 6 attempts, right, and he was having entire articleship and taxation. उनकी जो पूरी आर्टिकलशिप थी वो टैक्सेशन में, ठीक है. और 6 अटेम्प्ट्स थे, राइट. तो 6 अटेम्प्ट्स में ऑब्वियसली देखो, ये तो एक फैक्ट है कि जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं शॉर्ट लिस्टिंग कम होती जाती है, ठीक है. तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शॉर्ट लिस्टिंग जीरो हो जाती है. शॉर्ट लिस्टिंग रहती है, कम का मतलब जीरो नहीं है, राइट. ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है. तो उनको शॉर्ट लिस्टिंग में डेफिनेटली दिक्कतें आ रही थी. उनका कैंपस हो चुका था. कैंपस के बाद ही अप्रोच्ड अस, नवंबर 18 में की बात है. सो उसके ऊपर उन्होंने एक और फिल्टर लगा लिया, एंड दैट फिल्टर ऑफ टैक्सेशन, कि उन्होंने बोला कि पूरी आर्टिकलशिप टैक्स में हुई है तो मुझे टैक्सेशन में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो ही हैज पुट अनदर फिल्टर ऑफ टैक्सेशन. सो पहले तो अपॉर्चुनिटीज कम हो गई बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, and on that he put another filter of taxation, so he was not getting any call from anywhere. So we suggested him that please do prepare, first of all open yourself for all the profiles, right. कोई भी ऐसा फिल्टर मत लगाओ कि लाइक हमारे को टैक्स में जाना है या हमको ऑडिट में जाना है या अकाउंट्स में जाना है. कोई भी फिल्टर मत लगाओ. सबसे पहले ओपन अप योरसेल्फ, prepare well for the most common profiles, and he prepared very well for stat audit. ऑफ कैंपस थ्रू सोर्सेस डेफिनेटली उन्होंने अप्लाई किया और ही गॉट अ कॉल फ्रॉम बिग फोर. सो पहला ही जो उनका इंटरव्यू और पहला ही जो इंटरव्यू रहा दैट वाज इन पीडब्ल्यूसी, एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन पीडब्ल्यूसी इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट, राइट. तो मेरा आपको इस बेसिकली जो बोलते हैं ना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, राइट, वो वाली बात है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. इसमें 3-4 मिसकंसेप्शन हैं जो सबके क्लियर हो जाएंगे. पहला मिसकंसेप्शन ये क्लियर कर लो कि आप फ्रेशर हो. ऐसा कोई बैगेज नहीं है कि आपने टैक्स में आर्टिकलशिप किया तो आपको टैक्स में ही मिलेगा. आपने स्मॉल फर्म से आर्टिकलशिप किए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा. ऐसा कोई भी बैगेज लेके मत चलो. यू आर ओपन फॉर ऑल प्रोफाइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. दूसरा ये बैगेज लेके न चल भी मत चलो कि हम हमारे इतने अटेम्प्ट्स हो गए तो हमें बिग फोर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें पर्टिकुलरली इस कंपनी में मिलेगा नहीं मिलेगा. 100% मिलेगा. तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी बैगेज लेके नहीं चलता है, राइट. Recording, I'm not sure. I have to check with the team whether the recording is available or not. Right. So इसका बैगेज लेके नहीं चलना है आपको कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है या फिर नंबर ऑफ या फिर हमारा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, ठीक है. यू विल गेट अपॉर्चुनिटी ऑल अक्रॉस, राइट. थर्ड इज that prepare, right, preparation is very much required if you have not experienced it during your articleship. अगर आर्टिकलशिप में वो फेस नहीं करा है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी. और ऑफ कैंपस देयर आर अपॉर्चुनिटीज. इनके 6 अटेम्प्ट्स थे और ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब इन पीडब्ल्यूसी, राइट. तो ये कोई बात नहीं है कि अगर ज्यादा अटेम्प्ट है तो हमको
बड़ी कंपनी में चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, राइट? सो सारे जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको आप लोग क्लियर करते जाइए। मैं करीब 2-3 स्टोरीज कवर करता हूँ क्विकली, और उसके बाद आपको के कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको लेते हैं। सेकंड इज this is this is a story about November 19. There was a girl and she cleared in second attempt, right? She did not have any experience of banking profile. इनको बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन किस्मत की बात यह है कि सारी शॉर्टलिस्टिंग जो कैंपस के अंदर है वो चारों ही शॉर्टलिस्टिंग इनकी बैंकिंग में है, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट शी अगेन प्रिपेयर्ड डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग। शी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द बैंकिंग and got the best of the offer. So Bank of Baroda का offer best था उस time पे, and she picked up that one, right? So again, the message here is that do not worry about your articleship. If you can prepare well, you can crack that one. जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, right? International, कोई जाना चाहता है बाहर? Anyone who has the plans of going outside? कई लोगों के होते हैं गल्फ में जाना, सोचते हैं कि गल्फ में जाएंगे। There is no such plan of mine, but sir, I can ओके, if ऐसा I कोई got the प्लान नहीं है, opportunity. But पैसा मिलेगा तो चले जाएंगे, राइट? पैसा सीधी सी मिलेगा बात, तो चले राइट? जाएंगे. Yes sir. तो कई लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत करिए तो लेट्स ट्राई आउट ऑफ इंडिया। तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट ही वाज आल्सो हैविंग दैट प्लान कि गल्फ में अच्छा पैसा मिलता है, राइट? तेल खूब है वहाँ पे, राइट? और वहाँ की लाइफस्टाइल देखते ही हैं, यूट्यूब पे आप जाओगे वहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि सब जगह बस सोना ही सोना बह रहा है हर जगह। तो पैसा है वहाँ पे, डेफिनेटली काफी अच्छा है। लेकिन अगेन लाइक यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। सो ही वांटेड टू गो टू गल्फ। फर्स्ट ही जॉइंड, ही वाज हैविंग 4 अटेम्प्ट्स। इमीडिएटली आपको हो सकता है ना वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके प्लान्स हैं, राइट, उस प्लान्स के अकॉर्डिंगली टेक योर ऑफर्स। जो भी आप ऑफर ले रहे हो, आगे के जो प्लान्स हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। इन्होंने सबसे पहले ग्रैंड थॉर्टन ज्वाइन किया, 6 महीने में केपीएमजी में मूव करा, और केपीएमजी से विद इन अ ईयर ही मूव टू Gulf country, right? So that is also you can design your career. This is 7 attempts, right? Selected a wrong center, right? Wrong center. आज हम लोग आईसीआई कैंपस की बात करेंगे, उसमें यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम सेंटर्स इन दैट, और उसमें और क्लैरिटी आएगी। बट यस, इन्होंने रॉन्ग सेंटर सिलेक्ट करा और नो शॉर्टलिस्टिंग कम। तो ये एक अच्छा अच्छा सिनेरियो नहीं है कि कैंपस के अंदर आपकी एक भी शॉर्ट लिस्टिंग ना है, राइट? ये दिस इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल। ये भी एक स्पेशल केस है। कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, यस, ऑल्दो रेयर होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो डेफिनेटली बहुत हाई होती है, और होनी भी चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन एक्सपेक्टेशंस, जैसे इस केस में इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ वेरी निश एरिया, राइट? उन्होंने पूरा जो फोकस रखा आईबी पे ही रखा, पूरी तैयारी आईबी के लिए करी। ये जो पूरा एक महीना इन्होंने आईबी में दिया, राइट? फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखा, वैल्यूएशन सीखा, अलग अलग इक्विटी रिसर्च टाइप की चीजें सीखी। लेकिन इनकी जो शॉर्टलिस्टिंग आई, वो शॉर्टलिस्टिंग आई रिलायंस, वेदांता और विप्रो के लिए। ठीक है, एक भी इनको आईबी की कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी इनमें से तीनों कंपनीज की, और ना इच्छा थी जाने की, इन्होंने ड्रॉप कर दी है कंपनीज। ठीक है, उसके बाद इनको कैंपस से कोई ऑफर नहीं आया, और ऑफ कैंपस एक बहुत ही मीडियोकर जॉब में इन्होंने अपने आप को सेटल करा। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हाई एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा रिजिड मत होना आप लोग। जो भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उसको प्लान ए की तरह रखिए, और प्लान बी जो है, प्लान बी इज बेसिकली जो नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि रिलायंस, वेदांता, विप्रो, जो कुछ कंपनीज रेगुलरली पार्टिसिपेट करती हैं। तो उसके लिए भी अपने आप को मेंटली रेडी रखो। ठीक है, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि लाइफ में कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, राइट? एक ही प्लान बनाओ और उसको क्रैक करो दो। वो
पर्सनली मेरी फिलोसॉफी नहीं है और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा आपको, क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ कैंपस विल बी कमिंग, कंपनीज कितनी आने वाली है इस बार, किसी को नहीं पता है, राइट? किस किस सेंटर में कितनी कंपनी, ये गेम ऑफ चांस है कहीं ना कहीं। तो हमेशा आपका प्लान ए और प्लान बी, राइट, दोनों रखिएगा। राइट, सो दीज आर द 5 6 स्टोरीज दैट आई थॉट। इसमें से अगर किसी को कोई इमीडिएट क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में अपने खुद के लिए, राइट, तो दे कैन सर्टेनली आस्क। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि यस दिस इज व्हाट आई थिंक दैट आई हैव टू व्हाट आई विल डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपका तो डेफिनेटली विल टेक वन एंड देन विल मूव हेड। ओके, और कोशिश ये करिए कि इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, बिकॉज नाउ इट इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, राइट? लिखने का टाइम गया, यस, अब तो सब बोलने का टाइम है आपका। ऑल राइट, चलिए, एनीवेज क्वेश्चंस आते जाएं, तो मुझे आप पॉज करके पूछ सकते हो, ठीक है? सो सबसे पहले जो पार्ट है इस पूरे सिनेरियो में, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटीज, that is about ICI campus. Yes, ICI campus every year they conduct the campus, every attempt they do conduct a campus. अगर लास्ट कैंपस की बात की जाए, यस, लास्ट कैंपस में अगर आप देखते हो तो 10,000, करीब 13,000 स्टूडेंट्स बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? और आई एम डेफिनेटली लाइक आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, यू पीपल हैव डन रियली वेल। इस बार का जो रिजल्ट है वो आई थिंक पिछले 5-6 साल में सबसे ज्यादा कम परसेंटेज पास हुआ है इस बार। तो आप लोगों को अगेन, वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस स्लॉट में हो, जिसमें लाइक लास्ट टाइम इट वाज 13,600, 13,400 एंड दिस टाइम 8,600। सो इतने सालों में जब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं फाइनल्स में आने वालों के, तो परसेंटेज वाइज डेफिनेटली, तो यू पीपल हैव डन रियली वेल एंड ग्रेट जॉब। इसमें आपको दो फायदे होंगे जो मुझे लगता है पर्सनली। वैसे ये सब गैस वर्क है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट अगर जैसे आप नंबर्स देख रहे हो, अगर आप, इफ इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन कि 10,000 में से हाउ मेनी यू गॉट ऑफर्स? 2,300, राइट? ऐसे तो ऑफर 3,300 स्टूडेंट्स को रोल आउट किया गया था, बट एक्सेप्ट 2,300 स्टूडेंट्स ने करा था। तो जो लोग नहीं लेते उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि दे डू नॉट लाइक द कंपनी, और दे डू नॉट लाइक द रोल, और दे हैव सम अदर ऑफर्स, राइट? बट नेट नेट अगर बात करें तो जो क्वालिटी जॉब्स थे, ओके, उन क्वालिटी जॉब्स में अगर हम बात करें, 2,400 ऑलमोस्ट हैव एक्सेप्टेड द जॉब। So out of 10,000, those who got registered and you can say offered was 3,300, मतलब 33%, ठीक है? अब अगर सिमिलर नंबर्स की बात करें इस साल भी, इस अटेम्प्ट में भी, तो इट वुड बी out of 10,000, oh sorry, out of 9,000, sorry, 8,600, maybe I think 7,000 will register, and out of those 7,000, 3,300 ही अगर हम बात करते हैं, तो इस बार नंबर ऑफ ओपनिंग्स विल बी डेफिनेटली मच मोर, और आपके लिए जो कंपटीशन है वो काफी कम है। तो ये तो एक अच्छी बात होगी, कंपटीशन कम रहनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो पिछला अटेम्प्ट था उसमें जो नंबर ऑफ ओपनिंग्स थी वो कंपैरेटिवली कम थी compared to November 22. November 22 was very good. May 23 was very difficult. बहुत मुश्किल आई थी हम लोगों को भी स्टूडेंट्स को प्लेस करने में, हमारे रेफरेंसेस के थ्रू फिर कई लोगों को हमने प्लेस कराया था, तो वो अटेम्प्ट डिफिकल्ट था। तो इस हिसाब से ये वाला जो अटेम्प्ट है, राइट, ये अटेम्प्ट में दोनों फायदे मिल रहे हैं कि कैंपस मेरे हिसाब से काफी अच्छा आना चाहिए। लिंक्डइन पे भी मैं अभी ओपनिंग्स देख रहा हूँ, शुरू से ही आना स्टार्ट हो गई, राइट? कल से ही आई एम सीइंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर पोस्टिंग दी ओपनिंग्स, राइट? तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव बात है। सिनेरियो हैज विल डेफिनेटली बी गुड, ठीक है? और एट द सेम टाइम दी 2,300 2,400 अगर ये सिलेक्शन रहता है। दूसरी बात ये है कि एवरेज सैलरी जो है, राइट, इट इज 12.5 lakhs, ठीक है? इज इट गुड, बैड?
क्या है आपका व्यू? 12.5 lakhs, इतनी मेहनत के बाद 12.5, इज इट गुड, बैड, ओके, क्या है? लिखिए जरा चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक है, बैड, अच्छा अच्छा। 12 की जगह आई थिंक अगर 20 भी होता, 25 भी होता, सभी लगता है कि ठीक ही है। यस, क्योंकि इसमें तो ऐसा ही होता है, जितना कुछ भी हो, राइट, एवरेज ही लगता है। लेकिन आप लोगों ने खैर एफर्ट्स भी डाले हैं उस हिसाब से कि यस, योर एक्सपेक्टेशन हैज टू बी ऑन अ हायर साइड। ये जो नंबर था, दिस 12.5 lakhs, सॉरी 12.32 जो एवरेज सैलरी है, राइट, तो ये 12.32 3 साल पहले, राइट, समवेयर अराउंड 2019 वाज अराउंड 9 lakhs। सो 9 टू इट हैज बिकम 12 lakhs। ओके, तो दिखने में तो बड़ा अच्छा है कि इट हैज लाइक ऑलमोस्ट ग्रोन 33% जस्ट इन 3 years। तो एज सच बहुत अच्छा लग रहा है ये। लेकिन इसकी जो फ्लिप साइड ये है कि हर कंपनी ऑफर नहीं कर पाती, और इसलिए नंबर ऑफ ओपनिंग्स जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। ये बात भी याद रखना है आपको। पिछले अटेम्प्ट में अगर आप कुछ स्टूडेंट से बात करोगे, वो बताएंगे आपको कि हमारे को जॉब नहीं मिल पाई। उसका रीजन ये है कि ये बहुत हायर साइड है इंडस्ट्री के लिए। आज भी अगर हम एक जनरल कंपनी से बात करेंगे कि आप फ्रेशर को कितना ऑफर करोगे, तो उनके लिए 12 lakhs बहुत हाई होता है। उनका बजट अभी भी वहां नहीं पहुंचा है, राइट। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, राइट, कि कभी भी हम कहीं जा रहे हैं तो केवल इसी को एक बेंचमार्क मत बनाना कि लाइक आई कांट वर्क बिलो 12 lakhs बिकॉज दैट इज द एवरेज। एक्सपेक्टेशन रखिए, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री के सिनेरियो भी समझना है, क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं 2300 स्टूडेंट्स की। 10,000 में से जो 2300 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज पैकेज है 12.5। सही, तो एवरेज से भी कोई स्टूडेंट्स का बहुत कम भी आया होगा। ये तो यस एवरेज, यस, मतलब दैट्स व्हाट आई मैंने एम सेइंग। मैंने अपने कई लिंक्डइन मेंबर्स से सुना, तो उनने बोला कि 8 to 9 lakhs भी ऑफर हुए थे कई लोग को। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। ये बात है, इसलिए ये मतलब ये वो नंबर है जो जो बोलते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स, यस, स्टैटिस्टिक्स है ये। और स्टैटिस्टिक्स कई लोगों की डेफिनेशन ये भी होती है कि इज द बिगेस्ट लाई इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, राइट। मीडियन देना चाहिए सर इनको, मीडियन हाँ। डेटा पब्लिश करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको पूरी क्लैरिटी है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2300 स्टूडेंट्स, राइट, नॉट अबाउट एंटायर 10,000 जो रजिस्टर हुए थे। दूसरी बात है इसके अंदर कि दोज हु गॉट इंटरनेशनल 49 lakhs और 23.7, राइट, दैट इज द डोमेस्टिक पोस्टिंग। ठीक है, ये चेंज होती रहती है, कई बार इट बिकम्स 28, कई बार इट बिकम्स 29, 30 सॉर्ट ऑफ। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। स्पेसिफिकली जो सेंटर वाइज पैकेजेस है वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जो इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि इससे कम में कोई कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, राइट, उन लोगों के लिए दरवाजे बंद है जो इससे कम ऑफर करेंगे, राइट। तो ये एक अच्छी भी बात है कि उन्होंने बोल रखा है कि 9 लाख से कम अगर आप ऑफर कर रहे हो तो उन कंपनीज के लिए हमारे दरवाजे बंद है। तो एक तरह से बढ़िया बात है। इंस्टीट्यूट अच्छे काम भी करता है, राइट। सो अब हम आ जाते हैं कि नंबर ऑफ कंपनीज इन लार्ज सेंटर। नंबर ऑफ कंपनीज इन लार्ज सेंटर, ये 2-3 तरह के सेंटर होते हैं। 3 टाइप के सेंटर्स होते हैं उसको। तो पहले बात कर लेते हैं कि, हाँ, पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं दैट हु आर एलिजिबल। सबसे पहली बात, सो एलिजिबिलिटी में केवल आप लोग एलिजिबल हो जो इस बार पास हुए हैं, और जिन लोगों ने पिछली बार का कैंपस छोड़ा था, राइट, फॉर सम जेन्युइन रीजन, दे विल बी अपीयरिंग। बट 99% आप लोग ही रहोगे जिन्होंने इस अटेम्प्ट में क्लियर किया। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि कहाँ कहाँ पर हम लोग कितने सेंटर्स होते हैं। तो 3 कैटेगरी के सेंटर्स होते हैं। एक होता है लार्ज सेंटर्स, दूसरा होता है स्मॉल सेंटर्स, और थर्ड होते हैं न्यू सेंटर्स जो बिल्कुल अपकमिंग सेंटर्स हैं, राइट। लार्ज सेंटर्स एज द नेम सजेस्ट, लार्ज सिटीज, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, इस तरह की जो आपकी दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये लार्ज सेंटर्स। तो जो 20 फरवरी से हम बात कर रहे हैं, 20th Feb से द कैंपस विल स्टार्ट, सो दिस विल स्टार्ट इन द लार्ज सेंटर कैटेगरी।
और उसमें भी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? मुंबई से। तो 20 फरवरी को जो पहला इंटरव्यू हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है, राइट। तो पूरा जो फैब है और मिड ऑफ मार्च, सॉरी मिड ऑफ मार्च एंड एंड ऑफ मार्च तक लार्ज सेंटर चलता रहेगा, राइट। तो आपको इनमें से एक सेंटर सेलेक्ट कर, कोई भी एक पर्टिकुलर इस लार्ज सेंटर कैटेगरी में से एक सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये सिटी सिलेक्शन जो है हर एक का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है? कौन सी सिटी पसंद है आपको? कौन सी सिटी में जाओगे आप? Sir, which get most campus. Which gets most number of companies? I Okay. think Ahmedabad is best. अहमदाबाद इज बेस्ट, क्यों? सर जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है तो बेस्ट लगता है मुझे। डेवलपमेंट अच्छे हो रहे हैं, ओके। मुंबई, ओके, गुड गुड गुड। तो देखो सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है। तो मैं इसमें ना आपको वो बता देता हूँ कि जो आपको जो गलत है, यहाँ पर गलत थॉट प्रोसेस है वो, ताकि आप उन चीजों के बारे में ना सोचो, राइट। पहले तो बड़ा सिंपल होता था, कौन सा सेंटर लेना है, तो जिसमें मेरा दोस्त जा रहा है, राइट, वो सेंटर, ताकि साथ में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और इंटरव्यू देके आ जाएंगे। बट अब तो वो बात नहीं, अब तो वर्चुअल कैंपस है, राइट। तो घूमने फिरने वाली बात खत्म हो गई। सो दूसरा एक थॉट प्रोसेस होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनीज आती हैं, जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो कंपनीज हैं मुंबई में आपको Mumbai. दिखेंगी सबसे ज्यादा, राइट। 39 कंपनीज, 43, 50, इस तरह की सबसे ज्यादा कंपनीज। पीपल थिंक दैट दे हैव गॉट अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ओवर देयर, राइट। लेकिन इस बात को भी आपको समझना है कि यहाँ पे क्राइटेरियाज रहते हैं। एवरी कंपनी हैज अ क्राइटेरिया, राइट। उसके बारे में भी क्विकली बात कर लेंगे। और एक और थॉट प्रोसेस होता है, जैसे इन्होंने बोला कि अहमदाबाद में अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अहमदाबाद डेवलपिंग सिटी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर अहमदाबाद लिया तो पोस्टिंग आपको अहमदाबाद में मिलेगी। म्यूट कर लीजिए प्लीज। सो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अहमदाबाद आपने लिया तो आपको पोस्टिंग भी अहमदाबाद में मिलेगी, ठीक है। तो तीनों बातें याद रखिए। पहली बात तो ये कि इस कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो कंपनी जो पर्टिकुलर सेंटर ले रहे हैं, लुकिंग एट हायर नंबर ऑफ कंपनीज, राइट। तो हायर नंबर ऑफ कंपनीज में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। दे हैव देयर क्राइटेरियाज, राइट। एंड सेकंड इज दैट पोस्टिंग की कोई गारंटी नहीं है कि आपको पोस्टिंग वहीं पे मिलती है। विप्रो पार्टिसिपेट्स इन लॉट ऑफ सिटीज, मुंबई में भी पार्टिसिपेट करती है और दिल्ली में भी पार्टिसिपेट करती है। पोस्टिंग कहाँ मिलती है उसकी? बैंगलोर में मिलती है, राइट। सेम वेदांता, वेदांता भी अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करती है। पोस्टिंग कहाँ देती है वो? पोस्टिंग देती है वो दिल्ली में देती है सबसे पहले तो, गुड़गांव में। और उसके बाद फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह भेज देती है, राइट, जहां जहाँ पे भी उनके प्लांट होते हैं, ठीक है कोई आप लोगों के फ्रेंड्स जो वेदांता में काम कर रहे हैं? एनीवन हु इज वर्किंग इन वेदांता? वेदांता बेसिकली, हाँ बोलिए। नो सर। ओके, तो वेदांता बेसिकली प्लांट लोकेशन देती है, ओके। तो इसका पैकेज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये ऑफर करती है 20 lakhs, ठीक है। तो आप लोग ऐसा तो सोचोगे कि बढ़िया है, राइट। बट एट द सेम टाइम हर हर बात के दो चीजें होती है, राइट। फ्लिप साइड भी होती है उसकी। और इसकी फ्लिप साइड ये है कि प्लांट लोकेशन मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आउटर में मिलता है, ठीक है। उसके उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट ये पॉइंट क्लियर है आपको कि आपको एक सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके क्राइटेरियाज क्या रहते हैं थोड़ा उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट यू अंडरस्टूड दैट देयर आर वन कैटेगरी इज द लार्ज सेंटर, ठीक है। अब इस लार्ज सेंटर की जो पॉसिबिलिटीज है, राइट। सबसे पहला अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो शायद थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, बट स्क्रीन अगर आप ये देख रहे हो लैपटॉप पर, तो मुंबई सेंटर की बात करें जो लार्ज सेंटर है, उसमें फर्स्ट डे इज 20 lakhs, राइट। कोई भी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, मिनिमम 20 lakhs उनको ऑफर कर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डे की अगर कंपनी मिल गई आपको तो आपके बल्ले बल्ले हो गई, राइट। फर्स्ट डे अगर कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, क्योंकि वो 20 lakhs प्लस ऑफर कर। उसके बाद सेकंड डे वाली कंपनीज के लिए क्राइटेरिया है 14 lakhs, मिनिमम 14 ऑफर करना है,
उसके बाद इसका आगे वाले दिन में 11.5 lakhs। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर ये शॉर्टलिस्ट किस बेसिस में करते हैं? मतलब वो ये पहले डोमेन बता देते हैं क्या क्या डोमेन होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं मतलब? शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया पे मैं आता हूँ कि वो किस बेसिस पे करते हैं। बट व्हाट दिस स्लाइड बेसिकली ब्रॉडली टेल्स यू इज दैट जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे वैसे वैसे पैकेजेस कम होते जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि आईएम्स में पहले दिन सबसे बड़ा ऑफर होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं पैकेज। ठीक है, तो सेम हैपेंस हियर आल्सो। फर्स्ट इट विल बी 20, देन 14, 11 और ऐसे करके 10, 9.5, मिनिमम 9 lakhs। ये तो हमने बात कर ली है कि 9 lakhs से कम कोई कंपनी ऑफर नहीं करेगी। यस। और जो न्यू सेंटर्स हैं राइट, लाइक भोपाल, लखनऊ, रायपुर, रांची एंड वडोदरा, नो कंपनी विल ऑफर लेस देन 7.2 lakhs। राइट, तो इस स्लाइड के केवल दो टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे ये कि जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं पैकेजेस कम होते जाते हैं, और दूसरा ये कि कोई भी कंपनी 9 lakhs और 7.2 lakhs से कम ऑफर नहीं कर सकती है इन द कैंपस। राइट। ये वो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अभी तक हायर पैकेजेस ऑफर करें, लाइक डॉइश बैंक, पीएफसी, वेदांता, बीपीसीएल, वोडाफोन आइडिया, आईटीसी, जिन्होंने 20+ lakhs की अगर हम बात करें तो ये वो कंपनीज हैं। लेकिन अगेन मेरा वही आपको अगेन पॉइंट है बोलने का कि ये अगेन ये वो नंबर्स हैं जो मुश्किल से 5 लोगों को, 10 लोगों को मिले। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये मुश्किल से 5 लोग, 10, 12 ऐसे लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। राइट। सर आई हैव डाउट। हाँ बोलिए ना। सर किस प्रोफाइल पे ये डॉइश बैंक हायर करती है, और वो आपने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया ना, मतलब हाँ, जनरली किस प्रोफाइल रहती है? सो डॉयश बैंक, ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली किस प्रोफाइल के लिए लोग हायर करते हैं, ये जनरली लोग पूछते नहीं है ये वाला क्वेश्चन। अच्छी बात है अक्षत। लोग जनरली यही बोलते हैं कि आप तो ये सब छोड़ो, आप तो बताओ कितना पैसा देती है कौन सी, फिर जो भी काम करना है हम कर लेंगे। अगर 20-25 लाख मिल रहा है तो फिर ये नहीं सोचना है कि कौन सी प्रोफाइल है। राइट, अच्छी बात है। इस यू टॉक अबाउट प्रोफाइल, राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो प्राइमरीली दे कम फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोलरशिप उसको बोलते हैं। कंट्रोलरशिप के लिए ये लोग ऑफर करते हैं। तो अगर इस स्लाइड में वापस एक बार मैं आता हूँ और बात करते हैं, तो डॉइश बैंक, पीएफसी, वेदांता, बीपीसीएल, वोडाफोन, आईटीसी, भारती एयरटेल, कोलगेट, पीएनजी, 50% of the companies looks for financial reporting and 50% looks for financial planning। FP&A करके एक रोल होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। राइट, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड माय करियर विद FP&A इन आइडिया सेलुलर। राइट, इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल। वो प्रोफाइल वाला डिस्कशन भी हमको करना है आगे। राइट, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके कवर करते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, दीज कंपनीज आर नॉट ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करो। और अच्छी बात है आपने क्वेश्चन पूछा कि जब इतना पैकेज ऑफर कर रहे हैं तो फिर हो सकता है आईबी में ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्डमैन पार्टिसिपेट करती है कई बार। तो गोल्डमैन भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, लेकिन वो रिपोर्टिंग के लिए आपको सिलेक्ट करती है। जैसे कि लाइक आई आई वर्क फॉर अपोलो हॉस्पिटल, तो कई लोग सोचते थे कि मैं डॉक्टर हूँ। राइट, मेरे आसपास वाले लोग ये सोचते थे कि अपोलो में जा रहे हैं तो ये डॉक्टर है लगता है। ठीक है, तो वैसा ही है। गोल्डमैन में कोई काम कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है। गोल्डमैन में भी सब टाइप के काम होते हैं। ठीक है, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सर इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस ये एक ही चीज है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस, नहीं, ये इसमें क्या बिल्कुल अलग डिफरेंस है? अलग है। ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग है। इसको एक बहुत ही सिंपल वे में अगर डिफाइन करना है तो आपने इस साल रेवेन्यू जो अर्न करी है, राइट, वो रेवेन्यू आपने अगर आइडिया की बात करें तो कितनी अर्न करी है और उसकी अकाउंटिंग ठीक हुई है या नहीं हुई है, ये काम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। और हमारी जो रेवेन्यू है वो रिलायंस से कम है, रिलायंस जियो से, और एयरटेल से ज्यादा है। तो वो क्यों है ज्यादा? जोन वाइज एनालिसिस करके, सब्सक्राइबर वाइज एनालिसिस करके, प्रीपेड पोस्ट पेड कैटेगरी का एनालिसिस करके, ये जो एनालिसिस वाला काम है ये पूरा FP&A का काम।
तो FP&A is more of a business finance kind of role, and reporting is more of applying the Ind AS and those kind of things. ओके सर। राइट तो पहले सेंटर का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक तो लार्ज सेंटर है, वो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद इसी तरह से स्मॉल सेंटर्स हैं। तो अगर किसी का लार्ज सेंटर में सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, राइट, तो उनको फिर नेक्स्ट मंथ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्मॉल सेंटर्स में। जैसे कि अभी 20 फेब से सब स्टार्ट हो जाएगा और मार्च में ये चलेगा पूरा। अगर इस पूरे उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर अप्रैल में स्मॉल सेंटर्स स्टार्ट होते हैं। तो स्मॉल सेंटर्स में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, सॉरी सिटीज आती है? भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, इंदौर, कानपुर, राइट। तो ये स्मॉल सेंटर्स है। इसमें एक बार और अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। तो दो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। जिसका अगर लार्ज सेंटर में ही हो गया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है लार्ज में तो फिर हमको स्मॉल में जाना है। ठीक है, जितने भी लोग आज सेशन अटेंड कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप लोग अगर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो 100% आप लार्ज सेंटर में सिलेक्ट हो जाओगे, राइट। और टारगेट भी यही होना चाहिए। स्मॉल सेंटर में डेफिनेटली समझते ही हो आप, जितनी कंपनीज लार्ज में आती है उतना पैकेज भी लेकर नहीं आ पाती है और उतना नंबर्स भी नहीं होते। सो आपका टारगेट होना चाहिए लार्ज सेंटर। आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे फरवरी मार्च में मेरे को ऑफर लेना ही है। इनफैक्ट उसके पहले भी लेना चाहिए। ऑफ कैंपस भी यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड ग्रैब एटलीस्ट वन अपॉर्चुनिटी, और कैंपस के अंदर फिर एक और अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये बात हो गई क्लियर। अब दूसरी बात ये कि सेंटर सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग, सर ये क्या है बेसिकली? तो सेंटर सिलेक्शन जुडिशियस प्रोसेस है। क्यों जुडिशियस प्रोसेस है? क्योंकि सेंटर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। किसी का अगर एक अटेम्प्ट है, किसी के 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग में वेरिएशन आता है। तो एक तो ये क्राइटेरिया रहता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। लेकिन कंपनीज ये बात बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं बताती। सबसे बड़ी बात ये कि ये एक ऐसी बात है जो क्राइटेरिया रखते सब है, लेकिन बेसिकली डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, तो आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट इज अ क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सेकंड, आपका जो प्रेफरेंस है बेसिकली आर्टिकलशिप को लेकर, आपकी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस क्या रहा है, थोड़ा इम्पैक्ट उसका भी आता है, क्योंकि उसका डेटा भी वो लोग मांगते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से आर्टिकलशिप करी है। तो 3 चीजें जो पर्सनली मुझे लगती है जो जिसके बेसिस पे सेंटर सिलेक्शन होना चाहिए। वन इज, सॉरी, जिसके बेसिस पे कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं, उसमें एक है अटेम्प्ट्स, दूसरा है मार्क्स, राइट। मार्क्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, उतना ही नहीं, थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे ऑल्सो हैव सम वेटेज। यस। कितने लोगों के यहाँ पर 55% से ऊपर है? सर एग्जैक्ट 55 है। एग्जैक्ट 55? बढ़िया बढ़िया। मेरा 57 है। 57%, वेरी गुड। 55% से ऊपर जिनके हैं, राइट, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये कुछ भी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। कोई भी कंपनी नहीं बोलती है कि हमको इतने अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट चाहिए या इतना। ये सब पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे एक एनालिसिस है जो हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं। उसके बेसिस पे द ट्रेंड इज वेरी क्लियर दैट अटेम्प्ट मैटर्स, मार्क्स मैटर्स। ठीक है, कितने लोग हैं जिनको जो एग्जैक्ट 400 वाले हैं? फिर 404। 404, वाह, ये हुए ना नंबर। सेट ऑफ भी मिला सर, सेकंड ग्रुप से। सेट ऑफ भी है, वाह। तो ये है मजा, मतलब एक मजा आता है। 403 भी है हमारे साथ। ओके, नाइस। तो एक जो मजा है वो बेसिकली आता है रैंक होल्डर्स को, राइट। और दूसरा जो मजा आता है, राइट, वो आता है ऐसे 40, अच्छा 400 भी है, बहुत बढ़िया। तो ये जो मजा है, और मुझे भी आया था मजा, आई स्कोर्ड 402, राइट। 200 इन वन ग्रुप एंड 202 इन अनदर ग्रुप। तो मजा आ जाता है जब ऐसे नंबर्स आते हैं, राइट।
ये क्राइटेरियाज जिनके मार्क्स को लेके क्राइटेरिया होते हैं जिन कंपनीज के, वहां पर डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट कर सकता है अगर उनका मार्क्स एक क्राइटेरिया है तो। ठीक है, और रहता है, आई कैन टेल यू फ्यू कंपनीज विच आई कुड रिकॉल, देर आर फ्यू कंपनीज दे हैव दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ठीक है, तो हम उसको ना चेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये तो जो क्राइटेरिया है सो है। ठीक है, तो अटेम्प्ट्स, मार्क्स, आर्टिकलशिप, एक्सपीरियंस, ये तीन चीजों की वजह से आपकी शॉर्टलिस्टिंग डिसाइड होती है। और हमारा खुद का भी एक प्रेफरेंस होता है कि सिटी का क्या प्रेफरेंस है, कौन सी सिटी में आप पसंद करोगे जॉब लेना, राइट, और आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या है, ये दोनों चीजें भी मैटर करती है। तो जब हम लोग स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रोफाइलिंग करते हैं, राइट, जब हम सेशंस में डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेंटर लेना है, तो आई ऑलवेज डू 1-to-1 काउंसलिंग ओनली, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि लाइक सब लोग मुंबई चले जाओ, ये सबसे गलत तरीका है। मतलब आई रियली डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, जिसमें लोग बोल देते हैं कि मुंबई चले जाओ, सबसे ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आती है, उस कारण कई सारे स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती है, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि फंस जाते हैं। तो ये एक सोची समझी बात है, और इसमें आप लोग एक जनरलाइज आंसर मत लीजिएगा जब भी ये चीजें करो। तो डू टॉक टू योर सीनियर्स जिनके सिमिलर अटेम्प्ट्स थे, उनसे उनका एक्सपीरियंस लेकर, और ऑफ कोर्स जो हम लोग सेशंस करते हैं उन सेशंस में तो वी डू 1-to-1 काउंसलिंग ऑन दैट कि कौन सा आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। तो ये जुडिशियस प्रोसेस है, राइट, इसको बहुत रैंडम मत बनाइएगा। ये 5 डेटा पॉइंट अपने रेडी रखिएगा। आपको अगर मेरे से भी इस बात को कंसल्ट करना है, तो गिव मी दीज 5 डेटा पॉइंट्स, राइट, योर मार्क्स, योर अटेम्प्ट्स, योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, योर सिटी प्रेफरेंस एंड योर प्रोफाइल प्रेफरेंस। ये पांचों चीजें मुझे देके फिर आई कैन बेटर एबल टू गाइड, Sir, I have राइट। a question. हाँ हाँ, बोलिए। Sir, there is a general guidance that अगर बहुत attempts हैं तो shortlisting ही नहीं होगी, तो कुछ लोग गाइड करते हैं कि आप attempts filter कर दो, तो what is your take on this, sir? अटेम्प्ट्स फिल्टर कर दो मतलब अटेम्प्ट्स कम दिखाओ, हम वैसा। बताओ, कह दो कि मेडिकल इमरजेंसी थी तो नहीं अपेयर के सम, मतलब ऐसा कुछ। देखो वो कैंपस फॉर्म फिलिंग में ये एक चीज आती है, और उसमें आपको मैन्युअली ही नंबर डालना होता है। अच्छा। तो अगर आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाओगे तो इंस्टीट्यूट तो ये बोलते हैं कि फ्रॉम दी डे यू गॉट एलिजिबल, Yes, yes. जब आप एलिजिबल हुए तब से हाँ, काउंटिंग हाँ, स्टार्ट कर देते अच्छा सर अच्छा आई हैव अच्छा। वन क्वेश्चन। हैं। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बोला कि सिटी की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो हमको क्या क्या चीज उसमें कंसिडर करनी चाहिए सिटी की प्रेफरेंस बनाते टाइम, ओके, क्योंकि हम तो तो सब अनजान है ना सारे लेट मी शहरों से। फिनिश विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि वो मैनुअल नंबर है, तो हाँ मैनुअल हाँ नंबर अगर आपने कुछ भी डाला वहां पे, अब वो आपके हाथ में है। हाँ लेकिन अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाए आप किसी भी पॉइंट हाँ। पे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उस बात का आप ध्यान रखें। ओके ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ऑल सर राइट। जस्टिफाई सर जस्टिफाई किस इन दी सेंस, मतलब अगर मेडिकल इमरजेंसी है, अब तो किसी का पापा का ट्रांसफर हो गया, उस वजह से अगर अटेम्प्ट नहीं दे पाए तो क्या जस्टिफिकेबल रहेगा वो? देखो वो इंस्टीट्यूट, वो कंपनी टू कंपनी डेफिनेटली वेरी करता है, उसमें ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप मैन्युअली नंबर डाल रहे हो, कल को ये ना हो जाए कि हमारे तो 10 अटेम्प्ट्स थे और हमने 2 अटेम्प्ट्स करके लिख दिया है। यस, इट हैज टू बी प्रॉपर इन दैट पर्टिकुलर मैनर। यस, ओके तो तो उस हिसाब से आप लोग करिएगा, बट इंस्टीट्यूट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एलिजिबल, जब से आप एलिजिबल हो। आप दिसंबर 21 में पहली बार एलिजिबल हुए, तो हाँ दिसंबर हाँ 21, मई 22, नवंबर 22, मई 23 एंड नवंबर 23, 5 अटेम्प्ट काउंट करने के। ठीक है, तो ये एक चीज है। सर सर सिटी फॉर प्रेफरेंस। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिटी प्रेफरेंस कैसे डिसाइड करें। सिटी प्रेफरेंस मतलब एटलीस्ट यस ये सर। आपको क्लियर रखना है कि आप अपने होम टाउन में काम करना चाहते हो, या आप मेट्रोज हम्म। के लिए कंफर्टेबल हो, या फिर आप प्लांट लोकेशन के लिए भी कंफर्टेबल हो, या आप एनीवेयर, राइट। एक होता है कि हमको तो कहीं भी भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है कि नहीं, हमें मेट्रो में ही काम करना है, और एक होता है कि हमें हमारी लोकेशन पे काम करना है जो हमारा होम टाउन है। एटलीस्ट उतनी प्रेफरेंस, राइट, उतना एक अच्छा। ब्रॉड प्रेफरेंस आपको लेके चलना है।
Okay. ओके Sir, I have one doubt regarding articleship experience. हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे हमारी जो फर्म थी वो बीओबी का सेंट्रल ऑडिटर थी। तो अब फर्स्ट ईयर में मैंने सेंट्रल ऑडिट का कोविड में काम करा था, मतलब ऑडिट हुआ था तो मैंने सब ऑनलाइन काम करा था। उसमें सिर्फ मैंने केवल वाउचिंग करी थी। तो मैं इसको कैसे मतलब एडवांटेज ले सकता हूँ इसका? अब वाउचिंग तो मैं, अब वो फाइनलाइजेशन टाइप तो वो लोग तो सीनियर पार्टनर्स ही करते हैं सर। तो इसका एडवांटेज मैं कैसे ले सकता हूँ अपने सीवी में? देखो फॉर्म जब आएगा कैंपस का फॉर्म, वहां पे वो ये नहीं बोलते कि आपने वर्क क्या करा है। दे सिंपली से कि किस क्लाइंट पे काम किया है। तो वहां पे क्लाइंट का आपको नाम लिखना रहेगा, वहां पे आप लिख दो बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्क वाइज तो दे ओके सर। आस्क इन अ डिफरेंट कैटेगरी। मैं आपको कैंपस फॉर्म भी दिखा दूंगा, राइट? इन अ डे और टू वी विल बी हेल्पिंग यू इन दी कैंपस फॉर्म ऑल्सो। तो उसमें मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा कि किस तरह से 15th को एनीवेज आपके हाथ में आ जाएगा। तो मे बी ऑन ओके सर। 15th और 16th वी विल डू दैट, राइट? तो ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। सर जैसे अगर अपन ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं तो अगर जिस कंपनी में ट्राई करेंगे तो फिर हम वहां से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, ब्लॉक लिस्ट। अगर आपने एक कंपनी में, हाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करा तो ब्लैकलिस्ट कब होते हैं? तो अप्लाई करने पे ब्लैकलिस्ट कभी नहीं होते हो। जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है और उस इंटरव्यू में सपोज आप सिलेक्ट हो गए और आपने ऑफर लेटर नहीं लिया, तो फिर आप ब्लैकलिस्ट होते हो। तो प्रोसेस होने के बाद आपका ब्लैकलिस्टिंग वाली जो चीज है 6 मंथ्स के लिए, वो तब से स्टार्ट होती है। सर मतलब अगर हमने ऑफ कैंपस अप्लाई कर दिया, किसी के रेफर से रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड करा दिया है, हाँ और जैसे फॉर एग्जांपल केपीएमजी, और यही मैंने ऑन कैंपस अटेंड किया ये केपीएमजी का, तो वो बीच में कोरिलेट होगा, मतलब वो हिट होके, मतलब वो एंड मतलब सर वो कौन, वो ना हो जैसे जाए। ऑन कैंपस में आएंगे तो वो हमें फिर वहां से सिलेक्ट नहीं करेंगे क्या उसमें, सर पूछ रहे हैं। मतलब रिजेक्ट हो जाएगा सर एप्लीकेशन के, ऐसा कुछ? हाँ देखो पहले तो मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि शुड वी अप्लाई ऑफ कैंपस और नॉट राइट नाउ, राइट? जो एक्चुअल सवाल है सभी का, वो सवाल ये है कि हम ऑफ कैंपस अप्लाई करना कब शुरुआत करें। तो मेरा आपको सजेशन है एज अर्ली एज पॉसिबल। आज मौका मिले तो आज से स्टार्ट कर दो। अपना रेज्यूमे कंप्लीट करो। मैं आपको आज रेज्यूमे का फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। रेज्यूमे बनाइए, रिव्यू करवाइए और स्टार्ट कर दो आप भेजना, ठीक है? अब डर क्या लग रहा है आपको कि मैंने आज ईवाई में अप्लाई कर दिया और कल को हाँ कैंपस के अंदर भी ईवाई आ गई तो मेरे को शॉर्टलिस्ट करेगी या नहीं करेगी? हाँ तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। आज आपने ईवाई में अप्लाई करा, ईवाई से आपको कॉल आ गया। अब ईवाई से एक बार कॉल आ गया आपको, आपने देखा कि मुझे वो कंपनी अच्छी लग रही है, आपने ज्वाइन कर ली। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि नहीं, आपको कॉल आया, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने रिजेक्ट कर दिया। तो कैंपस में भी ऑब्वियसली आप उसको रिजेक्ट ही करोगे ना। आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कैंपस के अंदर। एक ही कंपनी सर को 2 बार क्यों रिजेक्ट करेंगे? सर अगर कंपनी ने ही ऑफ कैंपस में रिजेक्ट कर दिया, फिर हम कैंपस हम्म। में जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कंपनी ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई ना आपकी। तब तो आप लाइक कहीं भी मैंने करो अप्लाई। अच्छा लाइक मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया और सपोज उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, या हाँ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, मुझे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, फिर हाँ मैं जाकर के कैंपस में करती हूँ, हाँ। तो वो पॉसिबल है? कैंपस के अंदर देखो वो वेरी करता है। विप्रो में जैसे हमने देखा है कि ऑफ कैंपस भी किसी ने अप्लाई करा और विप्रो में उनको ऑन कैंपस भी उनकी प्रोसेस हो गई। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं, खासतौर पे बिग फोर, जहाँ पे 6 मंथ्स का क्राइटेरिया रहता है कि एक बार उनके अच्छा हाँ इंटरव्यू में बैठ गए तो 6 मंथ्स तक वो फिर हम्म, जनरली अलाउ नहीं करते। अच्छा अच्छा। सर और ऑफ सर कैंपस में सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं? जैसे अगर ऑन कैंपस में तो पता चल जाता है, ऑफ कैंपस में क्या हो सकता है? देखो ऑफ कैंपस काफी वेरी करता है। ऑफ कैंपस इस हिसाब से वेरी करता है कि हम कौन सी सिटी और कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इंदौर, जैसे मैं लाइक आई एम राइट नाउ सिटिंग इन इंदौर। इंदौर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो सैलरी पैकेजेस हैं, बैंक्स आर ऑफरिंग समवेयर अराउंड 10 lakhs 11 lakhs स्टार्टिंग पैकेज। तो मेट्रो सिटीज में तो बिगर सिटीज की अगर बात करें तो देखो कुछ भी फिक्स नहीं है। हर हर प्रोफाइल, हर कंपनी अलग है।
हर कंपनी का बजट भी अलग है। तो एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कौन सी अभी सपोज बैंक की जगह एनबीएफसी में आप अप्लाई कर रहे हो तो पैकेज बदल जाएंगे। लार्ज कॉर्पोरेट में आप बात करें, जैसे वेदांता वेदांता 20 lakhs ऑफर करता है, 25 lakhs ऑफर करता है, रैंक होल्डर्स को 28 lakhs तक ऑफर करता है। और उसी प्रोफाइल के लिए अगर कोई छोटी कंपनी है, जैसे कि मिंडा इंडस्ट्रीज आई थी, देवर ऑफरिंग ओनली 9 lakhs। काम एक ही करवा रहे हैं दोनों, लेकिन एक कंपनी बड़ी है एक कंपनी छोटी है, तो पैकेज में डिफरेंस आ गया। इसलिए स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल है। तो जब भी आप ऑफ कैंपस जाओ तो ये थोड़ा आइडिया लेकर जाओ कि कितना उस इंडस्ट्री में कितना पैकेज चल रहा है। ठीक है। और आप लोगों के पास मेरे कनेक्ट्स हैं, राइट? मेरे लिंक्डइन आईडी भी है, आई विल शेयर माय डायरेक्ट नंबर ऑल्सो। ठीक है, किसी को भी किसी भी टाइम पर कोई भी सवाल हो, यस, डू नॉट कीप दैट क्वेश्चन विथ यू। सर क्या बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो आप मल्टीपल मुझसे। सोर्सेस और मल्टीपल प्रोफाइल में सेम कंपनी में साइमल्टेनियसली अप्लाई करना सही रहता है? लाइक मैं सपोज ईवाई में ही, टैक्सेशन में भी, ऑडिट में भी, सब में एक साथ ही अप्लाई कर रही हूँ, और मुझे कुछ लोग मिले हैं जो रेफरल दे रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली एक बार में ही क्या करना, ये सही रहता है? पर्सनली स्पीकिंग, अगर कोई प्रेफरेंस नहीं है आपका तो अप्लाई करो, सब जगह अप्लाई करो, अच्छा कोई अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अच्छा। कारण ये है कि यू डू नॉट नो हाँ कि कहाँ से आपको पहले रिप्लाई आ जाए। हाँ हाँ और अगर आपको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो ठीक है ना, फिर टैक्स में अगर आता है तो टैक्स में, अदरवाइज ऑडिट, हाँ। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं। उससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है ना कि सेम पर्सन इतना साइमल्टेनियसली डिफरेंट प्रोफाइल्स में अप्लाई कर रहा है, या डिफरेंट लोग इसके लिए रेफरल दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई कोई कंफ्यूजन नहीं उसमें। अच्छा ठीक है ये ठीक है। पूरा एक तरीके से क्या बोलना चाहिए कि ये कंपटीशन है, आप लोगों की तो कंपटीशन है ही, हाँ कंसल्टेंट्स की भी है कंपटीशन। कई लोग हाँ आपको हाँ ऐसे मिलेंगे कि हमारे थ्रू ही अप्लाई करना, हाँ हाँ तुम किसी बिल्कुल के थ्रू बिल्कुल। अप्लाई मत करना नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। अच्छा ये अच्छा ठीक ये है। ये वो नहीं है, जैसे बचपन में हम देखते थे ना कि ये मतलब ऐसे ऐसे इमेजिनेशन स्टूडेंट्स को हो जाते हैं, वो कार्टून नेटवर्क में हम्म, देखते थे कि एक इधर से एक इधर से आ रहा हथियार, दूसरा हथियार इधर से आ रहा है, हाँ वो बीच हाँ में आके ब्लास्ट हो गया। तो ये वैसा हाँ नहीं हाँ। है कि ऑफर लेटर इन्होंने भी भेज दिया, इन्होंने भी भेज दिया तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा, वैसा नहीं है ये। अच्छा बेसिकली अच्छा। इट इज समथिंग कि आपको वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर कमीशन इज एसोसिएटेड राइट विथ योर सिलेक्शन। राइट राइट। एंड यू ऑल प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं आप सब लोगों हम्म को ये बात भी एडिशनली बोल देता हूँ कि कोई भी आज आप कंसल्टेंट आपके पास आते हैं या कोई भी आपके वेल विशर आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे हम्म, थ्रू ही अप्लाई करो, आपका कोई फ्रेंड भी बोलता है, तो प्लीज हाँ हाँ अंडरस्टैंड, इज देयर एनी काइंड ऑफ कमीशन विच दे विल हाँ बी गेटिंग? क्योंकि जब कमीशन एसोसिएटेड होती है ना तो दे फोर्स यू कि इसको ज्वाइन करो। हाँ ठीक है, कई सारी क्लासेस भी ऐसी होती है जिनका ये बिजनेस मॉडल होता है। तो ये सब सोच के करना है आपको। ठीक है, वी आर प्योरली इनटू ट्रेनिंग। हम लोगों का किसी कंपनी के साथ वैसा नहीं है कि लाइक वी गेट कमीशन, हम लोग रेफर जरूर करते हैं थ्रू अवर नेटवर्क, लेकिन वी नेवर गेट एनी काइंड ऑफ कमीशन काइंड ऑफ, वो हमारा बिजनेस मॉडल नहीं है। लेकिन कई कंपनीज का बिजनेस मॉडल कंसल्टेंसी वाला होता है। तो वो आपको हो सकता है कि बड़ी एवरेज सी प्रोफाइल को भी बहुत अच्छा सा मार्केट करके आपको बोलें कि इसमें आप जाओ, आपकी लाइफ बन अच्छा। जाएगी। हम्म, ठीक है, समझ तो गई। वो सब हाँ हाँ बातें थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। राइट, ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक क्या क्या डिस्कशन हो गया? बेसिकली हमारा डिस्कशन ये हो चुका है कि कितने सेंटर्स हैं, और उसमें क्या क्या पैकेजेस ऑफर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कितनी कंपनीज में आप सिलेक्ट होगे इसमें से, राइट? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि लार्ज सेंटर में भी 4 कंपनीज को आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 कंपनीज। ठीक है, आप सपोज बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है आपकी, राइट, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मुंबई कैंपस में 50 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा है, आपको देख के उन्होंने 20 कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो क्या आप उन 20 कंपनीज में बैठ सकते हो? तो आंसर इज नो, राइट। उन 20 कंपनीज में से आप केवल और केवल 4 कंपनीज में ही बैठ पाओ। ठीक है, मैक्सिमम यू कैन सिलेक्ट ओनली 4 कंपनीज आउट ऑफ दोस 20 कंपनीज। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। और उन 4 कंपनीज में से भी जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद आप और किसी कंपनी में नहीं बैठ पाओ।
तो 20 तारीख को सपोज रिलायंस पार्टिसिपेट कर रही है, 21 को एल&टी पार्टिसिपेट कर रही है, और 22 को पीडब्ल्यूसी, और 23 को लेट्स से विप्रो। आपका 20 तारीख को रिलायंस में सिलेक्शन हो गया, बस द मैटर इज क्लोज्ड। अब इसके आगे आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यस, आई बिलीव दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये जो पार्ट आता है कंपनी सिलेक्शन का, 20 कंपनीज में से हमको 4 कंपनी सिलेक्ट करनी। इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि यू टेक वेरी वेरी क्लियर कॉन्क्रीट डिसीजन। मेरे टाइम भी यही हुआ था। आई गॉट शॉर्टलिस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट 10 कंपनीज, और 10 में से मुझे 4 कंपनी सिलेक्ट करनी थी। ये भी क्रूशियल डिसीजन होता है कि किस कंपनी को छोड़ना है। ये बहुत बड़े करियर डिसीजन है, क्योंकि आपने आज जो ट्रैक पकड़ लिया, राइट, वो ट्रैक आप कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो बहुत सोच समझ के वो डिसाइड करिएगा। बट ऑब्वियसली वो अभी नहीं हो सकता डिसीजन, जब शॉर्टलिस्टिंग आएगी उसके बाद ये बातें हो सकती है, राइट। अब आ जाते हैं डेट्स के ऊपर कि डेट्स क्या है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 15 जनवरी, राइट। आज 10 जनवरी है, 3-4 दिन है अभी आराम से, राइट। और उसके बाद भी ये पूरा टाइम मिलता है आपको। 15 जनवरी से स्टार्ट होता है क्या जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है एंड ऑल, डेफिनेटली वी विल डू अ सेशन ऑन दैट। बहुत इजीली आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें जो सबसे बड़ा डिसीजन पॉइंट है वो है सेंटर सिलेक्शन, कौन सा सेंटर लेना है। और उसके लिए मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू इन 1-to-1 कन्वर्सेशन। लेकिन अगर आप खुद से भी फिल कर रहे हो तो टेक अ पर्सनलाइज गाइडेंस ऑन दैट कि कौन सा हमको सेंटर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल है। उसके बाद 15 जनवरी के बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग्स है वो शॉर्ट लिस्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगी बिटवीन 1 फेब टू 5 फेब। 1 से 5 फेब के बीच में कितनी कंपनीज ने आपको शॉर्ट लिस्ट करा है ये पता चल जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको 7 to 9 फेब आपको सिलेक्ट करना है कि हमको कौन सी कंपनीज पसंद है, ठीक है। तो ये पूरा जो खेल है ये चलेगा करीब 2 हफ्ते तक, राइट। 2 हफ्ते तक यही चलता रहेगा। पहले आप कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी और फिर आप कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करोगे। और उसके बाद 20 फरवरी से इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे। 20 फरवरी से पहले 3-4 दिन होंगे टेस्ट। कुछ कंपनीज रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती हैं, तो वो सब जो टेस्ट वाली चीजें हैं वो पहले ही कर लेती हैं, राइट। 17, 18, 19 के आसपास दे विल कंप्लीट ऑल द टेस्ट। जैसे विप्रो एक टेस्ट कराती है, रिटर्न टेस्ट करवाती है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछती है, तो दैट वे, राइट। तो दैट इज अबाउट द टाइमलाइंस। किसी को टाइमलाइंस में कोई कंफ्यूजन? Any confusion on the timelines? All right, सिंपल है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, राइट। आई विल बी सेंडिंग यू ऑन अ रेगुलर बेसिस दी जो भी कैंपस से रिलेटेड गाइडेंस वाले पॉइंट्स है, दैट आई विल बी सेंडिंग यू ऑन एंड ऑफ, राइट। सो ओवरऑल जो प्लेसमेंट प्रोग्राम है, राइट, प्लेसमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड ये सारे सवाल है, ये सारे पॉइंट्स है, राइट। तो जिसको भी आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी और कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू टेल मी। अदरवाइज हम लोग आई विल टेक 10 more minutes, राइट। इन 10 मिनट में आई विल बी स्लाइटली टॉकिंग अबाउट जो क्राइटेरियाज हैं, राइट, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बातें हैं, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद आई विल बी आस्किंग यू 5 क्वेश्चंस, 5 टेक्निकल क्वेश्चंस, और जो भी उसके करेक्ट आंसर्स देंगे, राइट, सो दे विल बी गेटिंग द प्राइजेस, राइट। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों की तैयारी पहले दिन से स्टार्ट हो जाए, इंटरव्यू की तैयारी। यस, तो पहले तो आप लोग बता दीजिए कि आईसीआई कैंपस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको। Sir, that means from 15th of Jan to till 31st, we have time to prepare for the interview campus. नहीं, नॉट ओनली मतलब 31st। ideally, what should we do between 31st Jan to 31st of between 15 to 31st? नहीं, इंटरव्यू तो 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 20th फेब से। तो यानी तो हम 15 जनवरी से 31 जनवरी तक क्या कर सकते हैं?
आप तो आज से ही आइडियली इंटरव्यूज की क्या तैयारी करना चाहिए? स्टार्ट करिए। यू शुड नॉट वेट फॉर 15th ऑल्सो। अभी तो ओके सर। डेफिनेटली देखो, एक दो दिन तो आई वोंट से कि अभी 2-3 दिन तो आप मजा करोगे, राइट? लेकिन पैरेलली बैक ऑफ द माइंड ये बात रखिए कि एक स्पेंड 1 or 2 hours ऑन प्रिपरेशंस ऑल्सो। जैसे रेज्यूमे बना लिया अपना, वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिया। तो ये जो पैरेलल एक्टिविटीज, ये तो आज से ही स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे टाइम मिलता है आपको, ठीक है? और धीरे धीरे करके उसको रिग्रेसली करो। मतलब मैं बोलूंगा कि 3-4 दिन एंजॉय करो आप लोग, और उसके बाद रिग्रेस प्रोसेस पे आ जाओ इसमें। मतलब इसको एक सब्जेक्ट की तरह लो आप। कैंपस प्रिपरेशन इज जस्ट लाइक एनी सब्जेक्ट, लाइक जैसे आप लेते हो ना डायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये एक सब्जेक्ट है पूरा। इसमें यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स। तो डेफिनेटली प्लीज पुट ऑल योर एफर्ट्स 100%। ओके, तो प्रोफाइल्स का जो डिस्कशन है, दैट आई विल बी डूइंग टुमारो, राइट? टुमारो हम लोग 7 o'clock वापस मिलेंगे। प्रिपरेशंस के ऊपर मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं अटेम्प्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ। व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, राइट? हम लोग क्या प्रिपरेशंस करते हैं? तो we have a concept of Super 60 batch, right? We believe in the limited batch size model, right? So Super 60 will be starting from 15th of January, right? आज से 5 दिन बाद। और these are some of the things that we focus on. Limited batch size, one-to-one conversation, right? 80% of the lectures I take care of myself, right? मैं 80% lectures लेता हूँ, including Indes, audit, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआर इंटरव्यूज, राइट? तो 20% लेक्चर्स हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू करवाते हैं। Speaking definitely is very important in all these cases. Most of this stuff we will be doing on a one-to-one basis, personalized basis. Resume review especially, जो सबसे important है, that is again I do review myself, right? तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक बहुत ही क्रूशियल करियर डिसीजन है। तो सारी चीजें पर्सनली आई गेट इन्वॉल्व इन, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम रेज्यूमे रिव्यू, वो भी मैं पर्सनली करता हूँ, training also, mock interviews also, and career guidance as well. So I do myself all these kind of things. We do not leave anything to any other faculty, or we do not outsource all this to maybe some kind of automated responses, right? Because ये बहुत ही ज़्यादा critical चीज़ है, and I personally believe in that. इंडेस के आपके 6 सेशंस होते हैं। 6 सेशंस इसलिए होते हैं क्योंकि इंडेस एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और हम लोगों ने जो उसको प्रिपेयर किया है सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए, उसका पर्सपेक्टिव पूरा अलग था। और अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो बिल्कुल अलग रहेंगे। तो योर अप्रोच हैज टू बी अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच, एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच। So we actually discuss all the Indes, including Indes 115, 116, 16, 2, 12, 109. पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। That's why we spent 6 sessions on Indes. और fortunately 80% of the questions we have found that has come from these discussion only, क्योंकि we have compiled all this last 5 years. तो 80% जो क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से ही जनरली पूछे जाते हैं। सेम गोज फॉर ऑडिट ऑल्सो। Audit may be like practical audit, application based audit is very important. So there are sessions on audit, even if you have not done a single audit, right? Do not get worried, वो आपका कवर हो जाता है इसके अंदर। सेम गोज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे एफपी&ए की हमने बात करी थी, तो दैट वन। सो टेक्निकल पोर्शन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, 70% ऑफ द टाइम इन्वेस्टेड इन दैट। So the duration is will be of total 15 days. 15 days में all this gets covered, and 6 days we keep it for last moment revision. जो 20 फरवरी के पहले वाला जो वीक होता है उसमें we revise everything, right? So it's overall a 21-day program, right? There are a lot of students who have got placed, right? We have formed a community of them. I will show you that as well. कि एक हम लोगों की कम्युनिटी है, और दैट इज a very very strong community. अगर आप सोचोगे कि रेफरेंसेस
कहाँ से मिलते हैं, राइट? तो रेफरेंसेस आपको ढूंढना पड़ेंगे, मतलब कई बार ऑफ कैंपस हम जब अप्लाई करते हैं तो यू नीड टू थिंक ऑफ रेफरेंसेस, और दिस इज द रेफरेंसेस दैट यू कैन यूज। यस, ये सब पास स्टूडेंट्स हैं, right? Those who are working in industry for last 5 years, 8 years, 10 years, like that. There are a lot of industry connect. So there are more than 800 students who are working all across India, abroad, for various roles, various profiles. So you can take an advantage of connecting with them, because I personally believe off campus is equally important. Campus जितना important है उतना ही off campus भी है. And off campus में the easiest route is write references, right? Mock interviews, yes, I will be conducting mock interviews, because all you need to be checked from all different angles. When I conduct interviews, I checked Index also, I check financial management also, I check financial planning also, taxation, because I worked in all these areas. So that's why, again, this is a thing which I do conduct myself, and that's the reason of keeping it limited, right? Limited batch करने का यही एक सबसे बड़ा reason है that I do get myself personally involved. Both face to face and online classes will be there. Online will be 7 to 9 p.m. every day, and face to face will be 9 to 11. थोड़ी सी क्लासेस हम लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं. जरूरी नहीं है कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके सामने जो राउंड्स होने वाले हैं वो ही राउंड्स बाकी लोगों के लिए भी हो, राइट? तो ये जरूरी नहीं है बेसिकली दैट, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट जितने अटेम्प्ट्स हैं, राइट, अलग अलग अटेम्प्ट्स के हिसाब से हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं. स्टूडेंट्स को जो कॉमन सेशंस होते हैं वो कॉमन करते हैं, और बाकी फिर थोड़ा सा हम लोग बाइफर्केशन करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट है, राइट, दे हैव टू बी 100% क्लियर कि उनके ग्रुप डिस्कशंस होने वाले, जीडी 100% होंगे आप लोगों के, तो जीडी की तैयारी आज से स्टार्ट कर दो. लेकिन जिनके मोर देन 1 अटेम्प्ट है उसमें पॉसिबिलिटीज कम होती चली जाती, राइट? So this is what will be starting on 15th of Jan, right? बाकी जो डिटेल्स हैं, that details our office will send to you, right? उनको आप लोग रेफर करिएगा, ठीक है? बाकी वेबसाइट पर बाकी के डिटेल्स दिए हैं, ठीक है? आप उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था which we should discuss right now, that is number of attempts, right? नंबर ऑफ अटेम्प्ट रियली मैटर करते हैं क्या? तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है कि यस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं, ठीक है? अब दूसरा सवाल ये है कि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना मैटर करता है, राइट? नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना मैटर करता है, तो ये एक सैंपल है जिनकी रैंक थी और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिनका सेकंड अटेम्प्ट था, तो ये एक सैंपल है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हो शॉर्ट लिस्टिंग कम होती जा रही है. तो ये बात आप लोग बहुत क्लियर रखो, इस बात, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. इसमें दो बातें हैं. पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग कम होती है, ये फैक्ट है. और दूसरी बात ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग कम होती है, जीरो नहीं होती. तो कितने भी अटेम्प्ट हो आपके, लास्ट टाइम हमारे पास एक स्टूडेंट थे जिनके 16 अटेम्प्ट थे, उनको भी शॉर्ट लिस्टिंग आई थी. तो कॉन्फिडेंस रखिए, शॉर्ट लिस्टिंग 100% आएगी. पर वो किन कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में आ रही है, किस प्रोफाइल के लिए आ रही है, वो अगर आप स्टडी पहले से ही कर लोगे तो केवल उतना ही आपको प्रिपेयर करना, सब कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं. तो आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडीड, यू हैव टू स्टडी वेरी फ्यू. पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, और वो इसी ट्रेंड के बेसिस पे. तो ये बात क्लियर है सभी को कि लाइक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, और शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपनी प्रिपरेशंस के लिए थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड एनालाइज करना है आपको. और वो पास्ट ट्रेंड कैसे एनालाइज कर सकते हो, मैं आपके साथ एक फर्स्ट जॉब प्रिडिक्टर शेयर करूंगा. वैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर किया है, आप में से भी हो सकता है कई सारे लोगों को फर्स्ट जॉब प्रिडिक्टर मिल गया होगा. तो वो आपको एक आइडिया दे देता है, और अब तो खैर आप लोग मेरे से डेली डिस्कस करोगे फेस टू फेस, तो यू हैव दैट थिंग कि हमारे
हमको कौन सी शॉर्ट लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंग, राइट। सो ये एक और पॉइंट है, राइट। तो नाउ आई विल टेक जस्ट लास्ट 5 minutes, 5 more minutes, एंड दैट इज फॉर द कैंपस क्विज। ठीक है, कैंपस की क्विज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने लोग हैं जो रेडी हैं प्राइजेस जीतने के लिए। और एट द सेम टाइम अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग पैरेलली पूछते जाइए। Sir, I subscribed your course earlier, but do I have to watch recorded lectures or not? रिकॉर्डेड अगर आपने देख लिए तो अब तो हम लोग लाइव सेशंस होने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से लाइव अटेंड करो आप, वो और बेटर रहेंगे। although there are definitely some repetitions that is going to happen, but still I believe कि अब आप participate कर पाओगे at least। Okay, sir. All right, so let me ask you a question to all of you that my question to you is that if I am I have taken being a customer, right? I have taken a software from Wipro, right? विप्रो से मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा है और वो सॉफ्टवेयर मुझे 3 साल बाद उन्होंने डिलीवर करा है, राइट। मैंने उनको एक ऑर्डर प्लेस किया, लेट्स से आई एम एसबीआई, और एसबीआई ने विप्रो को एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला है। विप्रो ने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, 3 साल बाद उन्होंने वो सॉफ्टवेयर एसबीआई को डिलीवर कर दिया, राइट। उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू समझ लो 3 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज दैट Wipro will recognize the revenue on the very first day, or they will recognize the revenue after 3 years, या फिर during these 3 years, right? 3 साल तक वो revenue recognize करेंगे 111 crore, or they will recognize 3 crore after 3 years. So during the 3 years, is the control transferred, or after 3 years it will be transferred? Control will be transferred after 3 years. So it will be recognized after 3 years when the control is transferred to the customer. Okay, so SBI को 3 साल बाद कंट्रोल मिल रहा है, तो इसलिए you will recognize 3 crore after 3 years. So first 3 years you will not recognize any revenue, correct? सर इसमें एक पॉइंट है, अगर मतलब सामने वाले कस्टमर की अगर प्रोबेबिलिटी पैराडाइन की इंडेक्स 115 पर टेस्ट करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग कंसिडरेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो, और तो फिर Consideration will be paid after 3 years. ओके डन सर, बट वो रेवेन्यू ड्यूरिंग 3 years भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा? The consideration will be paid after 3 years. Okay, sir. Based on completion of work, it will be recognized during 3 years. Okay, based on completion of work, right? As and when the work gets completed. तो Yes. वर्क 3 साल बाद कंप्लीट हो रहा है तो 3 साल बाद रिकॉग्नाइज करेंगे। नहीं, जो परसेंटेज ऑफ वर्क हो, जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन होंगे at All the right, end. percentage of completion. Yes, sir. Okay, good try, Nikhil. Yes, first of all, good job. At least you have tried, right? That is the most important thing, that one has to speak. अब आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसमें you need to speak up. That is the most important thing. So Thank you, अच्छी बात है, आपने पार्टिसिपेट करा। और कौन है जो आंसर देना चाहते हैं सेम क्वेश्चन? जो भी आंसर देना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट करें अपना अपना माइक। Will you recognize 1 crore each year, or you will recognize 3 crore after 3 years? All right. तो मेरे हिसाब से देखो, एक आंसर आया आफ्टर 3 years, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचिएगा आप लोग, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है, राइट। जो आपने आंसर दिया है निखिल, थोड़ा सा उस आंसर अलग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा
over a period of time and at a point in time. उसकी कुछ conditions हैं, उन conditions के accordingly we need to recognize this. In the interviews, if such question comes, and this question comes very frequently, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इंडेस 115 जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, शुरुआत 115 से ही करिए. इंडेस 115 सबसे पहले पढ़े और उसमें भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ पॉइंट इन टाइम का कॉन्सेप्ट रिगरसली पढ़िएगा. उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट. तो इसका आंसर उसके ऊपर बेस्ड है. क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इट विल टेक टाइम, बट यू अंडरस्टूड दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक द रेफरेंस. Yes, but still, like you have answered, you have taken that initiative to answer. Is good job. Okay, और एक और क्वेश्चन लेते हैं. That uh, what is your understanding about the uh, discounting factor that is used for Ind AS 116 while discounting the lease payments? कौन सा discounting factor यूज किया जाता है for discounting the lease payments जब आप ROU asset निकालते हो? तो what is the rate that you use? And believe me, these are all real questions, real interview questions. So first of all, our preference will be lesser's IRR rate, or what we say implicit discount rate in lease contract. All right. If it's not available, so we will take the lessee's incremental borrowing rate. All right. All right. Okay, this is again a very good answer. Good job, Nikhil. IRR and IBR. Okay, good job. तो आप लोग लीज को भी उतना इक्वल इंपॉर्टेंस दो, राइट. जितना इंपॉर्टेंस आप लोग 115 को दे रहे हो, उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस गिव टू इंडेस 116 आल्सो, राइट. तो इंडेस 115 एंड इंडेस 116, keep it give equal importance to that, right. I will ये म्यूट कर लीजिए प्लीज. All right. Next question to all of you is that purchase process. Yes, purchase process comes under internal financial controls or in internal audit. Purchase process किसमें आता है? पर internal audit में या internal financial controls में? A part of internal audit, internal audit. Okay. Okay. Good. Good. बाकियों को भी मौका दो. Yes. Internal audit या internal financial controls. Yes, everyone, please try to answer. Do not worry whether it is right or wrong. At least try to answer. Purchase process is a part of IFC or internal audit? Sir, it is a part of internal control because internal audit, sorry, because internal audit is a broader term and it includes IFC. So I think Internal audit includes IFC. Yes, sir. नहीं 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 नहीं. Internal audit does not include IFC. All right, no problem. Internal purchase process is a part of both internal audit as well as internal financial controls. ठीक है, दोनों का पार्ट है ये. ठीक है. सो ये कुछ क्वेश्चंस इंडेक्स से रिलेटेड है. दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी इक्वली प्रिपेयर करो आप लोग, राइट. जैसे कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैं हर बार पूछता हूँ, दैट इज इफ एनपीवी इज पॉजिटिव 1 crore, will you approve that project or not? Will you invest in that project? And I think I have put it that in the group also. So जिन लोगों ने ग्रुप इनिशियली ज्वाइन किया होगा, they know the answer, but still I would like to ask this question that if NPV is positive 1 crore, being a investment manager, will you invest in that project or not? No, sir. You will not invest. All right. Okay. Any other answer?
जिस बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं. ऑलराइट, प्लीज गेट योरसेल्फ रेडी फॉर सच क्वेश्चंस. ठीक है, ऐसे हम लोग क्लास में करीब 250 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसमें से आई पर्सनली बिलीव कि 80% क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं. तो ये सब एक्चुअल क्वेश्चंस हैं. ठीक है. The answer for this question, if it is NPV is positive 1 crore, definitely you cannot determine it just by this one number. You need to have IRR also for this project. This is an insufficient information. We need additional information, and that information is how much is the IRR, or how much is the initial investment that we are putting up. Okay, that is the answer. ठीक है. एनीवेज, आज अभी आपका रिजल्ट आया ही है, तो मैं अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा. लेकिन मेरा बोलने का जो पर्पस है वो ये है कि इन क्वेश्चंस के लिए आपको मेंटली रेडी होना है. ठीक है. और कल का सेशन हमारा प्रोफाइल्स के ऊपर रहेगा, वेरियस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, जो एक सेल्फ क्लैरिटी वाली जो चीज़ है, सेल्फ क्लैरिटी प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस प्रोफाइल्स, किसमें क्या भविष्य है, राइट, फ्यूचर क्या है हर प्रोफाइल का, कौन सी प्रोफाइल आपको लेनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. और डे आफ्टर टुमारो, राइट, ऑन 12th को हम लोग एक प्रॉपर कैंपस प्रिपरेशंस का सेशन करेंगे, जिसमें इंटरव्यूज से रिलेटेड काफी कुछ डिस्कशन करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. तो दैट विल बी अबाउट कैंपस प्रिपरेशंस, राइट. सो टुडे वी अंडरस्टूड अबाउट द इंडस्ट्री, tomorrow we'll be talking about the profiles, and day after tomorrow we'll talking about the campus preparations. ठीक है, तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चरिंग है. Before I end this particular session, okay, any questions if you have, yes, I will be very happy to answer. अभी के जो आंसर्स मुझे आए, निखिल का आंसर आया है. ठीक है, फॉर IRR एंड IPR, जो कि करेक्ट आंसर है. ठीक है, सो गुड जॉब निखिल. ओके, और आने वाले सेशंस में मैं रोज क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, और रोज एक्सपेक्ट करूंगा कि यू विल गिव द राइट आंसर्स. जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं ऐड हो जाइए, उसमें भी वी विल बी पुटिंग अप क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस, जो एक्चुअल इंटरव्यू के क्वेश्चंस है. ठीक है, तो यू विल गेट दैट आइडिया एज वेल. Yeah, so before we close the session for today, yes, any questions that you have? Any questions? All right, so कोई बात नहीं, अभी like फर्स्ट डे, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे. लेकिन I definitely again congratulate all of you for your fantastic success. And this is definitely unprecedented that in such a stiff competition, you people have scored so well and have cleared your finals. I again wish you all the best for the upcoming results. And at the same time, wherever you get stuck, right, definitely you can reach out to me. I have already put my direct number. You can definitely connect with me, or you can connect with our office. Yes. Yes, I actually I missed out. Yes, someone has was asking any question. All right, all right. Okay, thank you very much. I'll see you tomorrow. Bye bye. Good night. Hello. Hello. Sir, from when will your batch start? Batch will start from 15th. 15th And Jan. how can we subscribe for it? That detail will be shared on group. Are you added on the WhatsApp group? Yes, I'm added there. Okay, okay. So office will update on that. Okay. Yeah. What time will we have to devote every day? 2 hours. Okay. 7 And to 9. where is the face-to-face, like where is the location for face-to-face classes? Face to face would be in Indore only. Okay, okay. Yeah, Okay. yeah, yeah. All right. Thank you very much. Thank you.